Do you want to be a web designing expert? Well, this video might be just what you're looking for. So without wasting your time, so let's start it. So what is web designing? What is web designing? Design is the process of collecting ideas and aesthetical arranging and implementing them guided by certain principle for a specific purpose. Web designing is a similar process of creation with the intention of presenting the content of electronic web pages which can be accessed by the end user via internet and web browser. एलिमेंट्स ऑफ वेब डिजाइनिंग के हमारे एलिमेंट्स जिस पे हम बेसिकली फोकस करेंगे. वेब डिजाइनिंग यूजेस मैनी ऑफ द सेम की विजुअल एलिमेंट्स एज ऑल टाइप ऑफ डिजाइन सच एज लेआउट, कलर, फॉन्ट, ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस. बेसिकली जो हमारी वेबसाइट होती है इन्हीं मेन पॉइंट्स पे डिपेंड करती हैं चीजें जिससे हमारा लुक एंड फील आता है हमारी वेबसाइट का. वो मेनली हमारे फॉन्ट्स, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन. एंड द नेक्स्ट, यूजर फ्रेंडली वेब डिजाइन. मेनली जो हमारा डिजाइन होता है वो हमेशा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए. यूजर आए एंड उसको पता चले कि उसको बेसिकली क्या नीड है और वो उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर रहा है. So besides the basic element of web design which make the site beautiful and visually compelling, a website must also consider the end user. User friendliness can be achieved by paying attention to navigation, multimedia compatibility and technologies. That's completely same. Consistency in web design. Consistency in web design. Use the same font for all the web pages in a website. Correct. Use consistent graphic in website. Do not use ultra graphic on one page and calligraphy on another page. Use color scheme that is consistent across all pages. Consistency mean कि जो भी आप यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में लाइक फॉन्ट, कलर, तो वो पूरे आपकी होल वेबसाइट में सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप किसी एक पेज पे अलग यूज कर रहे हो एंड अदर पेज पे एकदम डिफरेंट वहां पर आ रहा है. तो एक कंसिस्टेंसी वहां पर बनी रहनी चाहिए हमारी. मेकिंग ऑफ ए गुड डिजाइन. Already people know. A good web design is understandable, interesting, easy to use, uniform in look and feel. The main part is 3 layer of web design. ये हमारे 3 layers क्या क्या होते हैं बेसिकली. आप यहाँ पे एक देख रहे हो स्ट्रक्चर स्केलेटन बनाया हुआ है और ये प्रेजेंटेशन है और इसका बिहेवियर है. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं अपने इस कोड में या वेब डिजाइन में, तो स्ट्रक्चर जो होगा हमारा वो एक आप कह सकते हैं HTML, and the presentation is like CSS, and the behavior is like JavaScript. So this is the 3 layers like structure of the web page is created by using HTML, and next is presentation, the CSS, and the behavior JavaScript. तो ये हमारी 3 चीजें होती हैं बेसिकली जिसके बिहाफ पे हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो बनी होती है और इसकी इन तीनों के यूज से ही हम एक अच्छा सा और सुंदर सा वेब पेज बना सकते हैं. अब HTML क्या है बेसिकली. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. So HTML elements tell the browser how to display the content. जो हमारे elements होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी जो कंटेंट है हमारा वो कैसे रिप्रेजेंट करना है वेब पे. लाइक हमें हेडिंग शो करानी है तो हम उसके लिए हेडिंग टैग यूज करते हैं. पैराग्राफ शो कराना है तो पैराग्राफ यूज करते हैं एंड सो मेनी थिंग्स. एंड सेम फॉर CSS. CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in other media. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. External style sheets are stored in CSS file. And JavaScript is a lightweight interpreted programming language. It is designed for creating network-centric application. It is complementary to and integrated with Java. JavaScript is a very easy to implement because it is integrated with HTML. It is open and cross-platform. Let's do some code. So before going to write a single code, I'm just going to tell you what I'm going to design or what I'm going to create. Okay, so here is the little demo what we are going to design in this live webinar. So you can see a wheel over here. It is moving and here are some components attached with the wheels.
like assets management, chat. We are not going to use any JavaScript in this, and we will completely design it by using HTML and CSS animations. Okay, so let's start from the code. So here I have a simple basic layout of HTML, and in this layout I'm using Bootstrap 4.5.3 version, and also using the Font Awesome family 4.7.0, which is used for mainly we are using it for just for आइकन ग्राफिक के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे बस एक सिंपल अभी छोटी सी CSS लिखी है जस्ट टू सेट द वेब पेज। तो हमें अब बनाना ये है, तो इसको बनाने के लिए हम कोड अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अभी इस हेडर को टारगेट नहीं करेंगे जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हम नीचे वाले कंटेंट को टारगेट करेंगे और इस व्हील को हमें टारगेट करना है, ये मूविंग व्हील जो है हमारा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ। हम जब भी कोई भी काम करेंगे वो एक सेक्शन वाइज ही हम स्टार्ट करेंगे। जब भी हमें कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन को पिक करना होता है, लाइक अगर हमने सेक्शन लिया है, इट मीन्स कि आप इसको कहीं भी मूव करेंगे कंप्लीट सेक्शन को, तो वो पूरा एक कंपोनेंट, वो पूरा डिजाइन वहां पे इजीली दूसरी साइड पर मूव हो जाए। एंड इसके अंदर मैं एक लेता हूँ कंटेनर। जिन लोगों को नहीं पता बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप बेसिकली एक बनी बनाई हमारी CSS की लाइब्रेरी होती है, जिसकी हेल्प से हम बहुत इजीली मतलब चीजों को बना सकते हैं। लाइक मैंने अभी यहाँ पे कंटेनर लिया है, और इस कंटेनर के अंदर अगर मैं लेट सपोज मैंने यहाँ पे हेडिंग टैग लिया है H1, मैंने इसको सेम नाम दे दिया है वर्क फ्रॉम होम। तो आप देखोगे यहाँ पे स्पेस जो है मुझे कंटेनर के अंदर मिल गया है। मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, लाइक दिस। तो एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंटेनर बना हुआ है जिसमें हमें एक विड्थ मिलती है 1140 px की, साथ में लेफ्ट राइट से हमें मार्जिन मिलता है ऑटो। तो इस तरह के कुछ हमारी बनी बनाई कंपोनेंट्स या क्लासेस होती हैं जिनको यूज करके हम इजीली और बहुत फास्ट अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। सेम यहाँ पे एक ग्रिड फंक्शन भी होता है बूटस्ट्रैप का, वो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। मुझे इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम D6 लिया है। तो अभी आप देखोगे ये मेरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये 50% एंड द अनदर ये वाला, यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा टेक्स्ट होने वाला है, सेकंड पार्ट में हम इसको एनिमेशन को बनाने वाले हैं। तो मुझे कुछ ऊपर से मार्जिन चाहिए, मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लास मार्जिन टॉप 5 ले लेता हूँ। और मुझे यहाँ पे अब एक चाहिए व्हील, सर्कल पेरेंट, क्लास सर्कल इनर, एंड सर्कल इनर को मैं यहाँ से पिक करता हूँ और CSS में लाता हूँ। इसकी मुझे विड्थ सेट कर देनी है अपने अकॉर्डिंग, लाइक विड्थ इनर लेयर 3 करते हैं इसको। मुझे 2-3 लेयर चाहिए होंगी। लेट्स सपोज मैं इसकी 300 पिक्सल विड्थ सेम हाइट में देता हूँ यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर हैश सेम एज बैकग्राउंड कलर हो गया यहाँ पे हमारा। Just for now I'm using sky blue color here. अभी हमारे पास एक ये स्क्वायर बॉक्स आ चुका है, एंड मैं इसको सर्कल बनाता हूँ। बॉर्डर रेडियस 50%।
और इसके अंदर हमें एक आइकन चाहिए बेसिकली, जो ये आप मूविंग आइकन आप देख रहे थे, जस्ट ये पल्स पॉप अप हो रहा है अप एंड डाउन। तो इसके लिए हम यहाँ पे आइकन यूज कर लेंगे जो हमने फॉन्ट फैमिली का लिया हुआ है। लेट्स सपोज div के अंदर हमने आई टैग में हमने फा, और हम लेते हैं फा स्टार, ले लेते हैं fw2x। ये बन के आ चुका है। अब हमें इसको सेंटर करना है, तो उसके लिए इसको हम देते हैं लोगो। डिस्प्ले फ्लैग्स आइटम्स सेंटर कंटेंट सेंटर, और इसको हमें हाइट भी बतानी होगी। हमारी 300 पिक्सल हाइट थी, उसके सेंटर में लाना है इसको। ये कंप्लीटली हमारे सेंटर में हो चुका है। ओके, तो हम इतना बना चुके हैं। अब हमें बेसिकली क्या चाहिए यहाँ पे, ये हमें कंपोनेंट्स चाहिए इसके सर्कल के पास एकदम, जितने जैसे हमारे चैट, एसेट्स मैनेजमेंट, ट्रैकर, सीआरएम। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इस सर्कल के अंदर। और इससे पहले हम अदर लेयर्स को डिजाइन कर लेते हैं अपनी। लेयर 1 हमने कर चुकी है, इसको हमने स्काई ब्लू दिया है कलर। अब अगेन इस लेयर को लेते हैं लेयर 1। इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, लाइक 50 पिक्सल एक्स्ट्रा करते हैं इसमें। वी डोंट नीड कलर, ग्रे कलर यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, एंड सेम फॉर लेयर 2। इस लेयर 2 को हम 400 कर देते हैं यहाँ पे। कलर चेंज करना होगा। मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्ट टू सेंटर ऑल द सर्कल्स। ओके, तो ये भी हमने एक सर्कल यहाँ पे अचीव कर लिया है, जस्ट सर्कल। और यहाँ पे हमारी लेयर्स भी हैं 1 2 3 एंड 4, सॉरी 3 लेयर्स। अब जो हमारा मेन काम है वो हमारा ये है कि प्लेसमेंट ऑफ द
ऑब्जेक्ट्स लाइक ये जो आप देख रहे हो। अब यहाँ पे आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, कोई आइकन यूज कर सकते हैं, चाहे आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट फॉर सेविंग माई टाइम मैं यहाँ पे आइकन ही यूज करूंगा जो हमें इसने प्रोवाइड किए हुए हैं। क्या नाम है, फॉन्ट और सबने इसकी नीड नहीं है कमेंट्स की। तो मैं जस्ट सर्कल पैरेंट के बाद जहाँ पे ये मेरा सर्कल इनर लेयर 2 खत्म हो रही है उसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे अपने चाइल्ड्स क्रिएट करूंगा। div क्लास इनर चाइल्ड्स और div क्लास चाइल्ड 1 और चाइल्ड 1 में मुझे क्या देना है यहाँ पे फा स्टार टू। हम कितने नोट्स लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कवर करेंगे 1 2 3 4 8 नोट्स लेंगे हम टोटल। और इसके साथ साथ मुझे इनमें एक कॉमन क्लास भी चाहिए, सी चाइल्ड 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये कुछ आप देखेंगे नोट्स यहाँ पे मेरे बन चुके हैं। अब मुझे प्लेस करना है इसको इस सर्कल पे, राइट। तो सर्कल पे प्लेस करने के लिए मुझे जो मेरा पेरेंट एलिमेंट है उसकी पोजीशन देखनी होती है। तो डिजाइनिंग में सबसे जो मेन पार्ट होता है हमारा सारा पोजीशंस का ही होता है। पोजीशन हमारी 5 टाइप की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी, स्टैटिक और फिक्स्ड। स्टैटिक जो होती है हमारी बाय डिफॉल्ट किसी भी एलिमेंट की स्टैटिक ही होती है पोजीशन। एंड हम यहाँ पे अभी रिलेटिव और एब्सोल्यूट को यूज करने वाले हैं जस्ट टू अरेंज द नोट्स ऑन ओवर द सर्कल। ओके, तो यहाँ पे हम चाहे तो हम स्टार की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। लेट्स फाइंड समथिंग डिफरेंट, चलो उसको बाद में करते हैं। ओके, तो अभी क्या है कि जब भी हम पोजीशंस यूज करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा सर्कल पेरेंट एक क्लास बनी हुई है, उसके क्लोज होने से जस्ट पहले ये उसी का एक चाइल्ड बना हुआ है जिसको मैंने नाम दिया है इनर चाइल्ड्स। अब मुझे इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करना है पूरे इस ग्रुप को, सो दैट कि अब ये डिपेंडेंट हो जाएगा मेरे सर्कल पेरेंट के ऊपर। यानी अब जहां पर सर्कल पेरेंट इसको मिलेगा सिर्फ ये वहीं पर ही मूव करेंगे या वहीं तक ही इसकी रीच होगी, उसके आगे ये नहीं जा सकते। ठीक है, तो मैं अब ये मेरे सर्कल अरेंजमेंट्स हो गए। अब इसके बाद हम करते हैं नोट्स अरेंजमेंट्स। तो नोट्स अरेंजमेंट के लिए मैंने यहाँ पे पिक किया अपने एक सर्कल पेरेंट को पिक करता हूँ जिसको मैंने पोजीशन दी है रिलेटिव एंड देन मेरे इनर चाइल्ड्स हैं। अब मैं इसको आपको ब्राउजर में दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर आया एंड मैंने इन नोट्स के पेरेंट को पिक किया यहाँ से इनर चाइल्ड को, एंड मैंने इसको दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। और जैसे ही मैं एब्सोल्यूट दूंगा एंड टॉप से कर दूंगा मैं इसको 0, तो ये टॉप वहां पे जाके रुकेगा जहां पर इसको रिलेटिव मिलेगा। और रिलेटिव हमारा क्या था, सर्कल था हमारा सर्कल पेरेंट, तो ये सर्कल पेरेंट में जाके अटैच हो चुका है। ठीक है, और प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए मुझे इस सर्कल को भी इस सर्कल पेरेंट क्लास के सेंटर में ही करना होगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ओके, तो अब ये प्रॉपरली एकदम सेंटर लाइन है, सो दैट कि मैं जब भी इसको यूज करूंगा तो ये इसके एकदम सेंटर में ही वर्क करेगा। और इंस्टेड की हम ये यूज करें, हम इसको वो भी दे सकते हैं हाइट और विड्थ, ये वाला। फाइनली हम इसको दे देते हैं ग्रे कलर, हटा देते हैं यहाँ से, रेड इसकी नीड नहीं है।
ये यहाँ आ गया और मैंने इस चाइल्ड को भी कर दिया पोजीशन एब्सोल्यूट। अब जितनी भी मेरी ये 8 नोड्स हैं मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से प्लेस करना है मुझे। आप चाहे मतलब 1 2 3 कैसे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम दिया है 1 2 करके और आप इसको दे सकते हो चाइल्ड टॉप, बॉटम, चाइल्ड बॉटम, चाइल्ड लेफ्ट, राइट। अब इसको कर देंगे टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम, बॉटम लेफ्ट और ये हो गया हमारा बॉटम राइट। ओके, तो मैंने इनको अगेन रीनेम कर दिए हैं इसके नेम्स को। इंस्टेड के हम 1 2 3 करते हैं। अब हमें पता रहे कि हमें किस चाइल्ड को कहाँ पे अरेंज करना है। उसके अकॉर्डिंग आप आइकन्स को, नेम को या कुछ भी आपको कंपोनेंट यहाँ पे चेंज करना है तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चाइल्ड। मैंने बताया था कि हम चाइल्ड कॉमन क्लास ले रहे हैं यहाँ पे एंड उसके साथ साथ यानी कि हम जो कॉमन, जितना भी हम कॉमन काम करेंगे वो इस चाइल्ड में एंटर करेंगे और जितना भी हम स्पेसिफिक या स्पेसिफिक पोजीशन होगी वो हम इसके पर्टिकुलरली लिखते हुए चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे इनर चाइल्ड के अंदर फिर अगेन इनर चाइल्ड के अंदर हमने लिया है डॉट चाइल्ड। अब जो मेरी प्रॉपर्टी होगी वो इसके अंदर चलेंगी। ओके, तो सबको करना है हमें पोजीशन एब्सोल्यूट। अब वो अब एक दूसरे के ऊपर वो आ चुके हैं, मतलब सारे यहाँ पे एक ही जगह पर अरेंज्ड हैं सारे। अब मुझे सबसे पहले किसको चाहिए, टॉप को चाहिए। तो टॉप में यहाँ से पिक करूंगा और टॉप के लिए मैं अलग से एक कोड लिखूंगा इसके लिए चाइल्ड और मैंने इसके साथ ही दे देना है। चाहे तो आप इस क्लास को यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी। तो मैंने यहाँ पे किया है चाइल्ड टॉप। मैं इस चाइल्ड क्लास की बात कर रहा था, ये वाली। आप चाहे तो इसको यूज करें या ना करें, बात एक ही है। और मैंने इसको कर दिया है टॉप से 0। अब ये टॉप पोजीशन एब्सोल्यूट तो मिल चुकी है इसको। अब ये टॉप से 0 कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे उसको उसका पोजीशन रिलेटिव मिलेगा। लेट्स सी वेयर इट इज गॉन नाउ। अच्छा, इसका चाइल्ड भी एब्सोल्यूट ही था, तो मैं इसके पेरेंट को हटाता हूँ चाइल्ड से। हम्म, और टॉप से 0 करना है, लेफ्ट से 0 करना है एंड राइट से 0 करना है। अब जैसे ही मैंने इस वाले इनर चाइल्ड्स की पोजीशन को हटाया तो आपने देखा कि वो एकदम अपनी रियल पोजीशन में आ चुके हैं, जहाँ पे बस सिर्फ चाइल्ड को एब्सोल्यूट मिली हुई है। तो उन्होंने वाला जो स्पेस था ये वाला, वो उन्होंने स्टिल ऑक्यूपाई किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इनके चाइल्ड को एब्सोल्यूट करते हुए जाएंगे तो ये अपनी रियल पोजिशन पे मूव होते हुए चले जाएंगे। एंड टॉप से 0 किया, यानी टॉप पे 0, लेफ्ट राइट 0 एंड मार्जिन कर दिया मैंने इसमें ऑटो। This must be here. And text line. Oh, position absolute is missing in this relative. यहाँ हम यहाँ पे position relative लिखना भूल गए। Okay, now अभी आप देखोगे तो ये हमारा जो चाइल्ड है वो एक इसकी स्पेसिफिक बिट्स के साथ ही अपनी पोजीशन दिखा रहा है। एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर सो दैट इट विल बी इन सेंटर। तो ये हमारे टॉप की पोजीशन हो गई। सेम फॉर हम बॉटम के लिए लेंगे।
चाइल्ड बॉटम। हमें बस क्या करना होगा, यहाँ पे टॉप की जगह पर बॉटम कर देना होगा, तो एक पोजीशन हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एंड फॉर लेफ्ट, अब जैसे मैंने बॉटम 0 किया है तो हम बॉटम को हटाते हैं और यहाँ पे लेफ्ट 0, राइट को हटा देते हैं। लेट्स सी, यानी वो लेफ्ट में आ जाए 0, बॉटम पे ही लगी हुई है, ये हमें करना है लेफ्ट। ओके, एंड सेम फॉर, यहाँ पे हमें मार्जिन ऑटो की नीड नहीं है, टेक्स्ट लाइन की भी नीड नहीं है, और इसमें भी नीड नहीं होगी हमें। ओके, अभी हमारी एक पोजीशन बची है राइट की, एक यहाँ पर आना चाहिए सर्कल हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टिल ना ये 4 स्टार बचे हुए हमारे, इसको हम यहाँ 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 प्लेस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा होगा टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट को हमने पोजीशन लेनी है टॉप से 0, लेफ्ट से 0। अब हमें टॉप की पोजीशन और लेफ्ट की पोजीशन को चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू दी सर्कल विड्थ, वो भी हमें यहाँ मिलना चाहिए, सॉरी दिस इज चाइल्ड नॉट टॉप। ओके, तो यहाँ पे एक हमारा सर्कल हमें मिल चुका है, where is the circle, सॉरी, नो, यहाँ पे एक स्टार हमारा आ चुका है। एंड अब हम इसको टॉप से मूव करेंगे नीचे की तरफ पिक्सल्स में, तो हमें कितने पिक्सल यहाँ पे चाहिए, लगभग इक्वल होगा ये हमारा, ओके। तो ये हमें पोजीशन मिली है, हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। एंड सेम थिंग अप्लाई होती है हमारी टॉप राइट पे, तो यहाँ पे टॉप की जगह ठीक है, लेफ्ट की जगह पर यहाँ पे जाएगा हमारा राइट, सी, यहाँ सेट हो चुका है। एंड अब जाएगा बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, अब टॉप की जगह पर हो जाएगा यहाँ पे बॉटम, और यहाँ भी टॉप की जगह हो जाएगा बॉटम, और यहाँ राइट की जगह कर देंगे हम लेफ्ट। सी सर्कल्स अरेंजमेंट्स, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट अरेंजमेंट ऑफ दी स्टार्स यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब मेन जो बात थी हमारी सर्कल को मूव करने की थी, आप चाहो तो इनकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, बिल्कुल टच होकर के आ रही है, लाइक लेफ्ट 5 पिक्सल या 3 पिक्सल समथिंग आप दे सकते हो, like this, or you can add some more, हो गया, 5 is enough।
ओके, सो अभी हमने एक बेसिक से स्ट्रक्चर रेडी किया है। अभी इसमें हमारा एनिमेशन पार्ट पेंडिंग है, और आप इसके साथ साथ कोई टेक्स्ट भी अगर आप देना चाहते हो तो वो इस एलिमेंट पे आप यूज कर सकते हो। आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो या व्हाटएवर यू वांट टू ऐड। ओके, एंड इसको कर एनिमेशन के लिए भी हम रुकते हैं, एंड हम यहाँ पे तब तक इसको लेफ्ट को डिजाइन कर लेते हैं। मेन इफेक्ट में ऐड कर देते हैं यहाँ पे एक लाइन। एक प्रॉपर्टी होती है अलाइन आइटम्स सेंटर, थोड़ा बिगर करने के लिए हम यूज कर लेंगे ओके। Now we can start the part of animation. तो एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें की फ्रेम्स लेने होते हैं, लाइक की फ्रेम्स। अभी मुझे एक रोटेट का एनिमेशन लेना है कि मुझे सर्कल को क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, और एकदम लीनियर घुमाना है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको हमने किया रोटेट 360, और हमने बताना है इसको 0 पोजीशन से स्टार्ट होगा और ट्रांसफॉर्म होगा रोटेट। रोटेट हम कराएंगे इसको 0 डिग्री से, और 100 पे जाएगा ये हमारा 360, जो हमारा एक सर्कल कंप्लीट करेगा ये 360 पे। और ये हमें घुमाना किसको है, इस सर्कल पेरेंट को हमें घुमाना है। तो सर्कल पेरेंट हमारी जहाँ पे क्लास थी, सर्कल पेरेंट दिस वन, यहाँ पे हम सिंपल एनिमेशन लिखेंगे एंड रोटेट 360, और इसको इनफाइनाइट टाइम हमें घुमाना है, और कितने सेकंड के लिए घुमाना है वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं 4 सेकंड यहाँ पे ले रहा हूँ, एंड सी। बट ये मतलब एक लीनियर टाइप का नहीं घूम रहा है। आप देख रहे हैं सर्कल पूरा करके ना स्टॉप सा हो जा रहा है, और आई होप कि मतलब ये आपको लाइव में थोड़ा और प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। इसके लिए बस मैं एक सिंपल लीनियर ऐड कर देता हूँ, तो एकदम कंसिस्टेंट घूमता हुआ दिखेगा ये आपको, बिल्कुल प्रॉपर। लेकिन जब ये घूम रहा है सर्कल, तो हमें ये स्टार्स को नहीं घुमाना है बेसिकली। ये हमारे स्टार हमेशा वैसे एज इट इज ही रहेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रोटेट 360 रिवर्स। तो बस हम इसको 360 को यहाँ से माइनस में कर देंगे, और इस वाले एनिमेशन को उठाकर हम लेकर जाएंगे। हमारा पहला क्या था, सर्कल लोगो। तो सर्कल लोगो, वेरी सर्कल लोगो हियर, एनिमेशन, और सेम टाइम ड्यूरेशन जो होगी हमें सेम रखना होगा 4s। इनफाइनाइट चलेगा ये भी, वो भी लीनियर में चलेगा।
ओके, तो अभी आप देखोगे कि ये जो स्टार है हमारा, बेसिकली ये भी घूम रहा है मिडल वाला, लेकिन क्या है कि वो रिवर्स चल रहा है और वो ये सॉरी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो हमारा सर्कल है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसकी वजह से आपको ये एकदम स्टेबल दिखेगा, यहाँ पे मूव होता हुआ नहीं दिखेगा। ओके, अब इसमें आप जितने भी एनिमेशन अगर चाहें, पल्स के एनिमेशन होते हैं वो आप डाल सकते हो, जो भी आप मॉडिफिकेशन आप इसमें करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कलर्स भी ऐड कर सकते हो अपने, पिंक, मैं यहाँ पे ग्लोरम टेरे लेता हूँ। टेक्स्ट म्यूटेड, एंड सेम मुझे इन सर्कल्स को भी मूव नहीं कराना, तो रिवर्स जो मेरा एनिमेशन था मैं इन पे लाता हूँ, इनर के चाइल्ड पे, सिर्फ चाइल्ड पर, दिस वन। तो बस आपको और टाइम की ड्यूरेशन को आप चेंज कर सकते हो, 4s की जगह पर 20 कर सकते हो, 10s। अभी एकदम आपको लीनियर घूमता हुआ दिखेगा, और साथ में आप ऐड कर सकते हो कुछ टेक्स्ट इसके साथ साथ। इसके पैरेंट को दे देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर। बस आपको ये पोजीशंस जो हैं थोड़ी सी अरेंज करनी होंगी, मैं अभी के लिए एनिमेशंस को स्किप कर रहा हूँ। ओके, बस अब एक बार आपने टेक्स्ट ऐड कर लिया तो इसके बाद आप इनकी पोजीशंस को सेट कर लो जहां पर आपको चाहिए। बहुत माइनर माइनर चेंजेस होंगे। लेट्स सपोज आपको ये यहाँ पे चाहिए -30 पिक्सल हम ले रहे हैं, तो ये हमें पता चल जाएगा इस वाले से, -30 पिक्सल, और यहाँ बॉटम से भी 30 पिक्सल कर देंगे माइनस, और लेफ्ट से हम कितना रख सकते हैं, ये लेफ्ट राइट है हमारा, टॉप से -10 पिक्स, नो, %, -10 px लगभग, यानी मैंने इसको टॉप से 50% माइनस करके और जिस टेक्स्ट की जितनी विड्थ हाइट जो भी थी मिडल में
लगभग 10 पिक्सल के आसपास होगी या 12 समथिंग 15 पिक्सल। तो मैं ये कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। सेम फॉर राइट, टॉप में इतना चाहिए। ये भी यहाँ पे अरेंज हो चुकी हैं चीजें, और सर्कल को आप बाहर निकाल सकते हो। बिल्कुल मिड में रखते हैं 4px। 4px 4px और ये मेरा टॉप वाला 24 -24। तो अभी के लिए ना हम एक टेक्स्ट स्किप करते हैं, हम बिफोर आफ्टर में यूज करते हैं इस टेक्स्ट को, नहीं बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैं तो रियल पोजीशंस में लाता हूँ इनकी। लगभग, और बस हमें चेंज करना था लेफ्ट और राइट को। टॉप कैलकुलेशन थी हमारी 100% माइनस, सॉरी 50% मेरा px। अभी हम एनिमेशन को रन करा के देखते हैं। अब ये ठीक लग रहा है। अब हम क्या, क्योंकि सर्कल की पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट था वो टॉप बॉटम और हर जगह पे अलग अलग आएगा जब वो सर्कल पे मूव करेगा। तो अभी के लिए हमने यहाँ से HTML से हटाया और हम उसको CSS से ऐड करेंगे। लेट्स सी हाउ टू ऐड। तो सबसे पहले मैं टॉप का ही लेता हूँ। मैंने इसका एक बिफोर क्रिएट किया है और मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है कंटेंट। कंटेंट में हमारा हो गया टेक्स्ट 1। स्टिल अगेन टाइम टेकिंग होगा वैसे ये। और पोजीशन एब्सोल्यूट, कुछ इस तरीके से आएगा। एनिमेशन को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये बिफोर था। मेरा ये कंटेंट बनता है इस बिफोर के लिए। सेम फॉर हम अनदर यूज करेंगे इसको, इसमें चाइल्ड को बॉटम में, टेक्स्ट टू टॉप की जगह हम लेंगे यहाँ पे बॉटम लाइक दिस। और सेम फॉर थर्ड, चाइल्ड लेफ्ट। और इसमें हमें चेंज करना होगा, लेफ्ट राइट को हटाना होगा, लेफ्ट को रखना होगा, बॉटम हटाना होगा C।
ये यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है। प्रोवाइड स्पेस नो रैप, लेफ्ट से 0, टॉप से -10 px, -20 पिक्सल हम ले रहे थे। वाइट स्पेस नो रैप हम इसलिए लेंगे ताकि टेक्स्ट नीचे की तरफ मूव ना हो, सिंगल लाइन में ही रहे। सेम फॉर राइट। टेक्स्ट लेफ्ट राइट यहाँ पे सब अरेंज हो चुकी है हमारी चीजें। 4 चीजें और बचती हैं। बिफोर टेक्स्ट, टॉप लेफ्ट, अब ये हमारा लगभग हम इससे रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। टॉप से हम 70 ले रहे थे तो 70 जगह 65, और लेफ्ट से 45 की जगह हम ले सकते हैं 30, और देख लेंगे यहाँ पे चेंज करके, ज्यादा ही हो गया। ओके, वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से आ रहा है। जीरो माइनस लगभग -20 ही चल रहा है यहाँ पे। लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा यहाँ पे। टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, करेक्ट। बॉटम ओनली कैमरा लेफ्ट, इसको हमें टॉप में लाना होगा। ओके, अभी इस टेक्स्ट को हमें सेंटर करना होगा बस। तो ये हमने राइट से लिया है, इसको चेक कर लेते हैं। लगभग -40, 38, 38। तो हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर, अभी हमने डिजाइन पे पूरा फोकस नहीं किया है, कंप्लीट एनिमेशन पे पूरा फोकस किया है हमने। तो आप ये देख सकते हो किस तरीके से सर्कल मूव कर रहा है। ओके, एंड हम इसकी रीनेमिंग कर देते हैं टॉप टेक्स्ट, बॉटम टेक्स्ट। ओके,
तो करते हैं इसको डिजाइन बहुत फास्ट। Hands moving. Okay. We also can what we can do. What we need to do is okay. तो अब हम इसमें डेकोरेशन डालते हैं। इस पिंक कलर को मैं हटाता हूँ। ओके एंड ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बीच मिड वाला। इसको हम चेंज कर सकते हैं something related to the theme। Box shadow 0 just to see। inner layer अब सबसे पहले हम बैनर को थोड़ा सा बना लेते हैं। बैनर में हमने हाइट दी है 100 VH। तो 100 VH
ऑलमोस्ट सेंटर है और अब यहाँ से हम पैडिंग क्लासेस हटा सकते हैं। ओके एंड अभी हमें कुछ चाहिए क्या? ये टेक्स्ट है, ये हम इसको नहीं बनाने वाले हैं, ये साइन अप और ये टेक्स्ट आप देख रहे हो। अभी हम बस एक हेडर क्रिएट कर लेते हैं। ओके and we also can change the colors, अल्टरनेटिव कलर्स हमें रखने होंगे इन स्टार्स के। ओके तो हमें यहाँ पे कॉमन चीज यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लाइक कि हमें स्टार्स के जो कलर हैं बस वही चेंज होंगे और जो हमारा टेक्स्ट कलर है उसको हमें चेंज नहीं करना है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या यूज करने वाले हैं, तो जितने भी हमारे ये बिफोर एलिमेंट्स ये बने हुए हमारे टेक्स्ट, तो हम उसके कलर को एज इट इज रखेंगे और जो ये स्टार्स हैं इनके कलर को हम इनके कलर को चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमारे इनर चाइल्ड के टॉप है, मैंने इसको कलर दिया, लेट्स सपोज मैंने इसको येलो दिया, तो ये इसका टेक्स्ट को भी चेंज करेगा यहाँ पे येलो। लेकिन हम पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि जितने भी चाइल्ड्स हैं, इनर चाइल्ड्स के जितने भी बिफोर है, उसमें टेक्स्ट हमेशा चाइल्ड्स के जितने बिफोर हैं इनर चाइल्ड में चाइल्ड, इसका कलर हमेशा यही रहे। तो अब हम जब भी ये चेंज करेंगे तो बस ये स्टार से कलर चेंज होंगे यहाँ पे। वहाँ पे तुमने येलो लिखा था, ये रहा। तो हम इसमें आएंगे, हमने कर दिया इसको ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ब्लू, वाइट भी ले सकते हैं हम, और हमने कर दिया इसको वायलेट। क्या रह गया हमारा? रेड। तो ये कलरफुल आप देख सकते हो, और कलर डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपकी थीम के ऊपर, आपको कैसा रखना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इस सर्कल को छोटा करना है तो वो भी आप कर लो। मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ 240। ये मेरी लेयर थी, सर्कल लेयर। हम्म, 250 कर लेते हैं। व्हाट्स रॉन्ग? थ्री 300 को चेंज करना था हमें। ओके और आई थिंक काफी है इतना। ओके अब मेन हमारा रहता है हेडर। हेडर के अंदर आप सिंपली क्लास लोगे, कंटेनर कन्वर्टिव। मैं यहाँ पे दो अपने वो लेता हूँ, कॉलम D6, दो कॉलम यहाँ पे डिवाइड करता हूँ बूटस्ट्रैप की, एंड H1 लिया मैंने, इसमें मुझे मार्जिन नहीं चाहिए। मार्जिन तो मैंने एक Amazon 0 क्लास की, लोगो, टाइटल,
यहाँ पे ये आ चुका है। H1 की जगह आप थोड़ा स्मॉल यूज कर सकते हो, H3 H4 logo title, and on the other side, like here, you can use the UL LIA, home, about, gallery, etc. तो हम इसको यहाँ पे नाम देते हैं नेविगेशन, एंड यहाँ पे हम इसको डिजाइन करते हैं। पैडिंग 0, मार्जिन 0, LI को हमें देना है list style type none, just to remove the bullets from the LI, and anchor, हमें एंकर पे ये बुलेट्स हटाने के लिए हमने यूज किया था यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप नन, एंड जो हमारे नेविगेशन का एंकर टैग है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें ब्लू कलर देता है, हमें इसको भी चेंज करना होगा। कलर #CC, ये एक ब्लैक कलर कोड है, एंड हमें होवर पे एक अंडरलाइन नहीं चाहिए। ये जो अभी आप एक अंडरलाइन यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हमें नहीं चाहिए। इसको हटाने के लिए हम सिंपल यूज करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा, एंड ये हमारी जो लिस्ट होती है ये हमेशा डिस्प्ले ब्लॉक होती है इसकी, तो हमें इसको करना है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सो दैट कि जो हमारा ये कंटेंट है ऊपर की तरफ मूव हो जाए लाइक दिस। एंड जो हमें पैडिंग वगैरह देनी है वो हम यहाँ दे सकते हैं, एक बैकग्राउंड कलर भी डाल देते हैं साथ में। और डिस्प्ले इसको भी इनलाइन ब्लॉक, पैडिंग 3px 10px, दिखेगा नहीं, सेम कलर आ रहा है, डार्क कलर लेते हैं इसको, और यहाँ पे लेते हैं व्हाइट, लाइक दिस। स्टिल ये होवर पे जो हमारा कलर है इसको हमें चेंज करना होगा, और इसके हम बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर देते हैं, या 4। तो आप देखो ये कुछ ही बन चुका है हमारा, एंड हमें इसे राइट अलाइन करना है। ओके, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, 6 नहीं लगाया। अब मैं आता हूँ हेडर के कोड में, बैकग्राउंड कलर RGBA, पोजीशन फिक्स्ड, और लेफ्ट से 0। ओके, अब हमें इसको अप करना होगा, z इंडेक्स 99 दिस। तो ये हमारा रेडी हो चुका है एक सेक्शन। अगेन हम एक सेक्शन लेंगे जस्ट फॉर क्लास py5 क्लास
just to show you कि how the header is working like this. ये हमने एक header में एक transparent layer ली थी, उसको दिखाने के लिए बस मैंने नीचे एक text ऐड किया है कि वो transparent layer कैसे शो हो रही है। एंड लास्ट हम बस एक छोटी सी चीज और करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। इसमें एक पीछे ग्रेडियंट टाइप का आप देख रहे होंगे, मतलब एक ग्राफिक बना हुआ है जिसको हम कम्प्लीटली CSS की हेल्प से यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो लास्ट हम वही करेंगे, इंस्पेक्ट। हम बैनर में एक बिफोर यानी सीडो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे वो क्रिएट करेंगे बिफोर, और मैंने यहाँ पे दिया कंटेंट को हम ब्लैंक रखेंगे और एक बिट्स दे देंगे। लेट सपोज हमने इसको 100 नॉट 100 500 पिक्सल एक बिट दी है। अगेन मैं एक हाइट दूंगा, हाइट में इसको 800 पिक्सल दे रहा हूँ और मैंने एक बैकग्राउंड कलर इसमें यूज करना है स्काई ब्लू और पोजीशन एब्सोल्यूट। तो आप देखोगे यहाँ पे एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल यहाँ पे बन चुका है, बट मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। लाइक बॉर्डर रेडियस 50%, 50% को देते हैं हम 50px, 40px, 100px और एक लास्ट कॉर्नर को भी 100px दे देते हैं। तो अभी ये प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, मतलब कैसे ये बन चुका है। मैं इसको एक ट्रांसफॉर्म लगा के ना रोटेट कराता हूँ। अब ये डिग्री आप इसको कैसे मर्जी रोटेट कर सकते हो, लाइक क्यों। और जो इसकी विड्थ सर्कल्स हैं ये आप और मूव कर सकते हो और टॉप से तो इसको 0। थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ। मुझे लास्ट के दोनों कॉर्नर को चेंज करना है बेसिकली। इसको भी सर्कल करना है एंड इसको भी सर्कल करना है। लगभग ये ठीक है। मैं इसकी फिट्स को कम कर सकता हूँ और टॉप से इसको ले आता हूँ नीचे। सेम साइज होगा तो भी सही दिखेगा। और आई थिंक इनफ है। अब आप इसको कितने डिग्री पर रोटेट करना चाहते हो, रखना चाहते हो, और कलर क्या आप इसका रखना चाहते हो। डॉट बैनर का बिफोर हमने बना लिया एक। और लास्टली हम इस एनिमेशन को इनेबल कर देते हैं लाइक दिस एंड सी। अभी इसकी स्पीड हमारी ज्यादा है, मतलब आप देख पा रहे होंगे, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। जो मैंने यहाँ पे 10 सेकंड यूज किया है, आप इसको जितना भी आप लेना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, 20 या 30 पिक्सल के अप्रोक्स ये सही दिखेगा। सी, तो ये द सिंपल डेमो फॉर दिस वेबिनार। आई होप यू गाइज एंजॉय और यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। और ये अगर आपको कोड चाहिए तो ये आपको गिटहब या W3 Grad के थ्रू मिल सकता है, मतलब कैसे इसमें ये वर्क हुआ है सारा। And you guys, if you want to join about the web designing course, so you can join the W3 Grads. Thank you very much for joining me. Bye bye.